ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 دوپہر خبرنامہ۔ میں ہوں آپ کا دوست نصیر غیاث۔ آئیے سب سے پہلے ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، حیدرآباد روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ دارالسلام میں آج بعد نماز عشاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ رحمت العالمین، تمام تیاریاں مکمل۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی دہلی میں پارٹی کے اہم قائدین سے ملاقات، کابینہ میں پھر توسیع کی قیاس آرائیاں۔ سی بی آئی تحقیقات سے ناراض آئی ایس آفیسرز ایسوسی ایشن کا آج ہنگامی جنرل باڈی اجلاس۔ شام میں عورتوں اور بچوں سمیت گزشتہ 2 دن میں 220 افراد ہلاک، دمشق کی صورتحال پر یو این سیکورٹی کونسل کا اہم اجلاس جاری۔ اور یورپ میں شدید سردی اور برف باری سے 220 افراد فوت، یوکرین میں درجہ حرارت -35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مختلف شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھے ہیں۔ حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ریالیوں اور جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر میلاد اور درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شہر برقی خمخموں سے جگمگا رہا ہے، جگہ جگہ روپرور مناظر نظر آ رہے ہیں۔ کئی مقامات پر بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں 12 ربیع الاول کے دن غریب مریضوں میں میوے بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ شہر کی تاریخی عمارتیں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئی ہیں۔ مکہ مسجد، چار مینار اور چار مینار دواخانے کی باوقار عمارتوں کو دیدہ زیب روشنیوں سے منور کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے مختلف محکموں کے تحت آنے والی یہ عمارتیں دلکش نظارے پیش کر رہی ہیں۔ نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم گئے، فرش پر دھوم گئے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 4 فروری بروز ہفتہ یعنی آج بعد نماز عشاء منعقد ہونے والے جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور اتوار 5 فروری کو ہونے والے کل ہند نعتیہ مشاعرے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بر صغیر کے اس 2 روزہ عظیم الشان جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کریں گے۔ جلسہ رحمت العالمین سے پاکستان سے مدعو کیے گئے مہمان مقرر پروفیسر ڈاکٹر سید عطا اللہ حسینی قادری ملتانی کے علاوہ مقامی علماء و قائدین مخاطب کریں گے۔ 5 فروری کو ہونے والے نعتیہ مشاعرے میں مہمان شعراء کے علاوہ مقامی شعراء بھی اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ عامة المسلمین سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ بر صغیر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اہل اسلام کے لیے فرحت و سرور کا دن ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، بطور شکرانہ روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے، لیکن اس مبارک دن غیر شرعی اعمال اور حرکات سے اجتناب کرنے کی ملت اسلامیہ کو جامعہ نظامیہ نے تاکید بھی کی ہے۔ جامعہ نظامیہ نے اس سلسلے میں فتویٰ جاری کرتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رقص کرنا،
गानों की धुन में नात लगाना और इतनी बुलंद आवाज़ से रिकॉर्ड लगाना जिससे दूसरों को तकलीफ होती है मना किया है। इसके अलावा काबे शरीफ और गुंबद खज़रा का मॉडल बनाना और रास्तों में रखना एहतराम के खिलाफ करार दिया गया है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अरश लगाना भी गैर इस्लामी तरीक़ा है। जामे निज़ामिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुबारक मौके पर ज़िक्र मुबारक की महफिलें मुनक़्क़िद करने, दुरूद व सलाम, अताम व दीगर कार खैर का एहतमाम करने को शरन महमूद व मुस्तहसन करार दिया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी दिल्ली में हैं। वो आज पार्टी हाई कमान के अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे। किरण कुमार रेड्डी का दौरा दिल्ली शेड्यूल के मुताबिक नहीं है, वो अचानक दिल्ली गए हैं। क़यास किया जा रहा है कि किरण कुमार रेड्डी की काबीना में फिर तोसी की कोशिश की जा रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले से ही दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर और सदर PCC दोनों मिलकर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह या सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को हैदराबाद का दौरा करने के लिए मनाएंगे, क्योंकि इन दोनों बड़े कायदीन ने गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के पेश नज़र हैदराबाद के दौरे को मुलतवी कर दिया था। रियासत के IAS ऑफिसर्स का जनरल बॉडी इजलास आज मुनक़्क़िद होने वाला है। CBI की जानिब से मुख्तलिफ स्कैम्स के सिलसिले में IAS अहदेदारों से मुसलसल पूछताछ और चंद अहदेदारों की गिरफ्तारी से रियासत के दूसरे अहदेदारों में नाराज़गी पाई जाती है। अहदेदारों ने CBI पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुताल्लिक़ा वज़रा को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अहदेदारों को ही निशाना बना रहे हैं, जबकि उज़रा की हिदायत पर ही IAS अहदेदार अहकामात जारी करते हैं। IAS ऑफिसर्स ने इस सिलसिले में जुमे की शब चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से भी नुमाइंदगी की थी। आज IAS एसोसिएशन का हंगामी जनरल बॉडी इजलास तलब किया गया है। उधर रियासत की सीनियर एक और IAS अहदेदार रत्ना प्रभा आज CBI के रूबरू हाजिर हुई। MR प्रॉपर्टी और दीगर स्कैम के सिलसिले में CBI ने रत्ना प्रभा से पूछताछ की। साबिक़ में रत्ना प्रभा जिन महकमों की जिम्मेदार थी, उन महकमों के तहत बड़े पैमाने पर करप्शन के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। इस सिलसिले में CBI ने उनसे तफसीलात हासिल की। आलमी यौम कैंसर के मौके पर जुबली हिल्स में एक शऊर बेदारी रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने शिरकत की। इस रैली का अहतमाम इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल की जानिब से किया गया था, जिसको DGP दिनेश रेड्डी ने झंडी दिखाई। इस मौके पर बालाकृष्णा, राजशेखर, VVS लक्ष्मण, गोपीचंद और दूसरे मौजूद थे। अब बात करेंगे मुल्क शाम की। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में 220 अफराद हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग और मार्टर तोपों से की गई गोलाबारी से 217 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 138 अफराद हुम्स के ज़िले खालिदिया में मारे गए। इंसानी हुकूक़ के मुबसरीन ने अवाम से मुतालबा किया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो जाए। अरब मीडिया के मुताबिक मारे जाने वाले अफराद की तादाद 230 हो गई है। सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली करारदाद में अरब लीग के उस मुतालबे से मुतालिक कोई वाज़ेह इशारा मौजूद नहीं है कि शाम के सदर बशारुल असद इख्तिदार की मुंतकिली के अमल में अपने नायब के हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे। इससे पहले लाई गई करारदाद के मसौदे में यह मुतालबा मौजूद था। उधर शाम के हवाले से करारदाद पर वोटिंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हफ्ते की सुबह हो रहा है। ये मसवदा मगरबी ताकतों और अरब लीग ने तैयार किया है, जबकि रूस करारदाद के सख्त मसवदे की बदस्तूर मज़ाहमत कर रहा है। इस तनाज़ुर में वोटिंग का नतीजा गैर यकीनी है। रूस ने जुमे को एक मरतबा फिर कहा है कि वो नए मसवदे की मौजूदा शक्ल में हिमायत नहीं कर सकता। क़ब्ल अज़ीं गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में पेश की गई करारदाद के मसवदे की राह में भी चीन और रूस रुकावट बने थे। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में एक पुलिस स्टेशन को नामालूम अफराद ने आग लगा दी और ज़ेर हिरासत अफराद को छुड़ा कर ले गए। मशरक़ी कायरा में एक पुलिस स्टेशन पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया और वहां मौजूद ज़ेर हिरासत अफराद को छुड़ा लिया। मुसल्लह अफराद ने जाते हुए पुलिस स्टेशन को आग भी लगा दी। इस वाक़े में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़ेर हिरासत अफराद को फुटबॉल मैच में हंगामों के बाद हिरासत में लिया गया था।
यूरोप में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस हलाक होने वालों की तादाद 220 से बढ़ गई है। यूक्रेन और इटली समेत बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत कम तरीन रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा 101 हलाकतें यूक्रेन में हुई हैं। पोलैंड में हलाक होने वालों की तादाद 37 तक पहुँच गई है। जुमे के रोज़ पोलैंड में दर्जे हरारत -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सख्त सर्दी और बर्फबारी के बायस कई इलाकों में ज़राए आमद व रफ्त मुतासिर है, जबकि कई मुतासरा इलाकों में बिजली और गैस की सरबराही भी मुअत्तल हो गई है। नाज़रीन, आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। हैदराबाद रोशनियों से जगमगा उठा। दारुस्सलाम में आज बाद नमाज इशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा रहमतुल आलमीन। तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी दिल्ली में पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात। काबीना में फिर तौसी की क़यास आराइयां। CBI तहकीकात से नाराज IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन का आज हंगामी जनरल बॉडी इजलास। शाम में औरतों और बच्चों समेत गुज़िश्ता 2 दिन में 220 अफराद हलाक। दमिश्क की सूरत हाल पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास जारी। और यूरोप में शदीद सर्दी और बर्फबारी से 220 अफराद फौत। यूक्रेन में दर्जे हरारत -35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह था 4TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।